لوگوں کے اپنے وڈ لاٹ سے اس کی اسکیم وزیر اعلیٰ پنجاب لے کر آئی, اور نہ اسٹیٹ لینڈ کے اوپر بلکہ ہم نے فارسٹ لینڈ, اسٹیٹ لینڈ, رینج لینڈ کا جو پیچی ایریا ہے جس کے اوپر فارسٹیشن ہو سکتی ہے جس ایریا کے اندر, کیونکہ وہاں واٹر چینلز اور واٹر ریسورسز نہیں ہوتے, تو اس کی جگہ ہم متبادل جو فارسٹیشن کر رہے ہیں, اور وڈ لاٹس کی ہماری الگ اسکیم ہے جو پرائیویٹ فارم لینڈز کے اوپر فارسٹیشن ہو رہی ہے. اور یہ تمام چیزیں سائنٹیفک, وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو ان کو بھی آسانی ہو جائے گی, اس ایوان کا بھی ٹائم بچے گا اور تھوڑا سا ان کی انفارمیشن میں اضافہ بھی ہوگا. پھر اسپیکر صاحب فارسٹ کی بات کی ان جنرل, ڈیجیٹل فارسٹ ریسورس مانیٹرنگ, اے آئی ارلی مانیٹرنگ سسٹم جو کہ جرمنی کی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اے آئی سسٹم انسٹال کیا گیا ہے کہ فارسٹ میں آگ لگنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اباؤٹ 20-25 منٹس پہلے کہ یہاں آگ لگنے لگی ہے, بیکاز اس کے ایٹماسفیئرک کنڈیشنز ایسے ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کو بچانے کے لیے ٹیکنالوجی پہلی دفعہ پاکستان میں لائی گئی ہے. ڈرون اینڈ سینسر فلیٹس کو متعارف کرایا گیا ہے پروٹیکٹڈ ایریا اور فارسٹ لینڈز کے اوپر کہ اگر کوئی چوری ہو رہی ہو, وڈ کٹنگ ہو رہی ہو, تو وہ اے آئی ڈریون سینسرز کے ذریعے ہماری جی آئی ایس لیب کے اندر الرٹ آ جاتا ہے اور اس کو فوری طور پر روکا جا سکتا ہے اور مانیٹر کیا جا سکتا ہے. فارسٹ فائر میٹیگیشنز کا جو سب سے بڑا پروگرام ہے پنجاب کا. اسی طرح اربن اینڈ پیری اربن فارسٹ پالیسی پہلی دفعہ متعارف کرائی گئی ہے, جس میں یہی جو میں نے آپ کو بات کہی کہ ایکریج کے اوپر پلانٹیشن کو متعارف کرایا گیا ہے. ہم نمبر آف ٹریز سے نہیں, کیونکہ اگر وہ ٹری لگ کے اس کے بعد وہ گم گیا ہے, غائب بھی تو ہو جاتے ہیں نا ٹریز, وہ جو لگے, تو اب ہم ٹریز کو گمنے نہیں دیں گے اسپیکر صاحب. اب لگے ہوئے درخت جس پہ حکومت کا پیسہ لگتا ہے وہ ہم سیاسی سلوگنری کے لیے استعمال نہیں کریں گے, وہ اب ہر درخت جی آئی ایس لیب کے اندر مانیٹرڈ اور ٹیگڈ ہے. اسی طرح اسپیکر صاحب 24/7 کمپلائنس ہے. میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ درختوں کی چوری نہیں ہو رہی, میں بالکل یہ بات نہیں کر رہی, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب کی پہلی 600 اہلکاروں کے اوپر فارسٹ فورس میرٹ کے اوپر بھرتی ہو چکی ہے اور وہ تمام فارسٹ جو ہے اس کی مانیٹرنگ کرے گی. اسی طرح پنجاب کی پہلی وائلڈ لائف فورس جو ہے وہ بھرتی ہو چکی ہے اور پنجاب کے پہلے وائلڈ لائف موبائل ہاسپٹل جو ہے وہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اسی طرح فارسٹ پروٹیکشن میں نے پہلے بات کی, اس کی ہو چکی ہے, اور جتنی ایپلیکیشنز ہیں ان کو پہلی دفعہ آن لائن کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی اہلکار یا کسی بھی افسر اس میں ہیومن انٹرفیس نہ ہو سکے اور اس ایپلیکیشن کے اوپر فوری طور پر کام ہوتا ہے. اسی طرح وائلڈ لائف پہ انہوں نے بھی بات نہیں کی, لیکن وائلڈ لائف اینڈ بایو ڈائیورسٹی کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا کہ انفورسمنٹ اگینسٹ آفیسرز ود ان دا ڈپارٹمنٹ اینڈ اوفینسز, اس کا پورا قانون پہلی دفعہ چینج کرایا گیا ہے. کومنگ اینڈ ریسکیو آپریشنز جاری ہیں, وائلڈ لائف فورس جاری ہے. پنجاب کے اندر پہلی دفعہ سفاریز اور وائلڈ لائف جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے اندر ایکو ٹورزم کو متعارف کرایا گیا ہے تاکہ وہاں کی نہ صرف بایو ڈائیورسٹی پرزرو ہو, کنزرو ہو, بلکہ سسٹینیبلی وہ پروٹیکٹ کی جا سکے. اسی طرح پنجاب کا پہلا وائلڈ لائف ہاسپٹل سفاری لاہور کے اندر انشاءاللہ جولائی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ انوگریٹ کریں گی. پروٹیکٹڈ ایریا کے اندر جو چھانگا مانگا ہے اس میں پہلی دفعہ وہ کریں گی انوگریٹ. اسی طرح جو ویسٹ مینجمنٹ اینڈ سرکولر اکانومی ری سائکلنگ کی بات تو کیوں نہیں کی 4.5. اور اسپیکر صاحب جو شخص پارلیمنٹ میں ستھرا پنجاب کے اوپر تنقید کرے وہ اصل میں اس صفائی کے خلاف بات کر رہا ہے جو اس وقت دیہاتوں میں اور شہروں میں پنجاب کے ہو. اگر کوئی یہ بات کرے تو ایک تو اس کا ذہن گند آلود ہے کیونکہ پنجاب اب صاف ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مطلب ستھرا پنجاب جو گلیاں, محلے, بازار, دیہات, شہر, آپ کی ڈویژنز, آپ کی ڈسٹرکٹس جس کے اوپر دنیا مثال دیتی ہے جس طرح کی صفائی ہو رہی ہے اس کی تنقید کر رہے ہیں. اور فیصلہ آباد کی انہوں نے بات کی اسپیکر صاحب, فیصلہ آباد میں کرپشن جو ہوئی, مس اپروپریشن جو ہوئی وہ کسی نے نہیں پکڑی, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود اس کا نوٹس لیا. ادھر ہماری طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کی
इंस्पेक्शन टीम है, इनकी तरह जिन्नात नहीं टूर करते। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब भी जाग रही हैं, वुज़रा भी जाग रहे हैं, डिपार्टमेंट्स भी जाग रहे हैं, और अल्लाह ताला का फजल है, हमें जिन्नात की जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब जो क्लाइमेट एंड अभी तो स्पीकर साहब 20 मिनट हुए हैं, 1.5 घंटा बाद झूठ बोला है, 20 मिनट का सच नहीं सुन सकते। बात सुने स्पीकर साहब, बात सुने, आप सीनियर मिनिस्टर की बात सुने जी। राणा साहब कोशिश करें। नहीं, नो क्रॉस टॉक जी, प्लीज नो क्रॉस टॉक। साफ पानी, पेट की बीमारी, बड़ी दर्दें होनी स्पीकर साहब। अभी तो स्पीकर साहब ये वजीर आला पंजाब की 2.5 साल की कारकर्दगी है, 2.5 साल की। हमें अल्लाह ताला का फजलो करम है कि वजीर आला पंजाब के जो 60,000 इंस्पेक्टरेट ने बीमारियों का तयन किया और डेटा इकट्ठा किया, जो मैं भी कह रही थी कि हेल्थ मिनिस्टर प्राइमरी के यहाँ बैठे हैं, कमाल मेहनत की इन्होंने वजीर आला पंजाब की क़यादत में और उनके विजन के मुताबिक। और 60,000 इंस्पेक्टरेट कि किस किस किस्म की वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, किस किस किस्म की, जो पहली दफा पंजाब का ड्रेन रिहैबिलिटेशन प्लान भी वजीर आला पंजाब ने ही मुतारिफ कराया है। इनको 4.5 साल इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं नजर आया, इनको गली मोहल्ले देहातों का कूड़ा नहीं नजर आया। क्यों नहीं नजर आया स्पीकर साहब, क्यों नहीं नजर आया? क्योंकि मकसद स्पीकर साहब काम करना नहीं था। लेकिन मैंने पहले इस ऐवान में कहा था, काम ऐसे नहीं होता, काम सिर्फ अल्लाह की तौफीक देने से काम होता है। तो स्पीकर साहब, वजीर आला पंजाब का 8 अरब का साफ पानी का साउथ पंजाब का और जो पोटोहार का एरिया है और पंजाब के सेंट्रल जोन्स आर्सेनिक वाटर, और उसको पहली दफा मैप करके, और वो वजीर आला पंजाब जिसका मैं आज नाम लेना चाहती हूं, जो कि शहबाज शरीफ साहब थे, जो साफ पानी की वजह से नैब की पेशियां भुगतते थे, आप सबको याद होगा। और अल्लाह ताला का फजल है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 8 अरब की लागत से 5,600 साफ पानी के जो नए प्लांट्स हैं उनको मुतारिफ कराने का इस बजट में मंसूबा है, और तमाम एग्जिस्टिंग प्लांट्स जो हैं वो इस वक्त रनिंग पे हैं। फिर इसी तरह पंजाब रूरल वाटर सप्लाई जो कि 96 बिलियन रुपीस, 96 और 20 करोड़ बिलियन रुपीस के ऊपर 2000 देहातों में न सिर्फ साफ पानी बल्कि वाटर, सीवेज और ड्रेनेज का बंदोबस्त ये प्रोग्राम कर रहा है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं समझती हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो विजन है जो कि 78 सालों में जो नीचे पाइपलाइंस थी, जो जेरे जमीन थी, वो चोक हो चुकी थी, ब्लॉक हो चुकी थी, वाटर, ड्रेनेज, सूएज और पीने का साफ पानी। 4.5 साल किसी को नजर नहीं आया, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जो मसरूफ होते हैं खाली वो काम नहीं करते। काम वो लोग करते हैं जिसकी नीयत काम करने की और अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे। और ये जितने मंसूबों की मैंने बात की स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, जितने मंसूबों की मैंने बात की है वो सब इनके हलकों में इस वक्त इंप्लीमेंट हो रहे हैं। हमने नहीं देखा, हमने सुबह उठ के पहली मीटिंग वजीर आला पंजाब ये नहीं करती कि शहबाज शरीफ को आज नमाज के लिए जेल में कुर्सी क्यों दी है। आज शहबाज शरीफ ने जेल में क्या खाना खाया है? आज मरियम नवाज को कौन कौन मिलने आया है? किसी की बेटियों को हथकड़ियां लगा के वो वाहिद औरत थी जो नैब की कस्टडी में गई थी। हम लोग नहीं उठ के ये बातें करते। वजीर आला पंजाब की पहली मीटिंग होती है, किसी ने उनको आकर कहा, मैंने पहले भी इस ऐवान में वाकया सुनाया था कि जी हमारे पीटीआई के मुखालिफ थे, उनके बाहर फील्ड हॉस्पिटल खड़ा था तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि क्यों, उस हल्के के लोग जो हैं वो इंसान नहीं है। उन्होंने एक नहीं 3 फील्ड हॉस्पिटल्स इन लोगों के हल्के में भेजे। तो स्पीकर साहब, इन्होंने बात की साउथ पंजाब की। स्पीकर साहब, मैं चंद गुजारिशात करना चाहूंगी
एक तो मैं एक दफा फिर तमाम पुलिस को, रेंजर्स को, आर्म फोर्सेस को, स्पेशल ब्रांच को, सीटीडी को, सीसीडी को, सबको मैं शाबाश देना चाहती हूं। और वजीर आला पंजाब का जो विजन था, कच्चा के इलाके में जिस तरह का तारीखी ऑपरेशन हुआ, और ना सिर्फ तारीखी ऑपरेशन पुलिस बेस्ड था, बल्कि स्पीकर साहब पहली दफा 58 अरब के साथ कच्चा डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, सीएनडब्ल्यू, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस के मंसूबे थे। क्यों नहीं नजर आए इनको 4.5 साल जो एरिया नो-गो बनाया हुआ था? वो वजीर आला पंजाब ने आकर उस पर ऑपरेशन किया और एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ वहां पहली दफा नादरा की वैन गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां पहली दफा रेस्क्यू 112 जाने जा रहा है, वहां पहली दफा फील्ड हॉस्पिटल क्लिनिक ऑन व्हील्स जा रहे हैं, वहां पहली दफा इलेक्ट्रिक बस जा रही है। स्पीकर साहब, पंजाब की, और इनको दुख हो रहा है क्योंकि अब वो नारा भी इनका सही नहीं रहेगा और वो भी झूठ होगा इंशाअल्लाह। और स्पीकर साहब, मैं एक और बात, जितनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वजीर आला पंजाब की, थोड़े से फिगर्स, और ये तमाम फिगर्स स्पीकर साहब, तमाम फिगर्स तमाम गवर्नमेंट के पोर्टल्स के ऊपर मौजूद है। ये तमाम जो फिगर्स मैं अभी देने लगी हूं, ये तमाम फिगर्स गवर्नमेंट के इन प्रोग्राम्स के डैशबोर्ड और पोर्टल्स के ऊपर मौजूद हैं। आसान कारोबार साउथ पंजाब, अभी तो स्पीकर साहब 25 मिनट हुए हैं, अभी तो स्पीकर साहब 25 मिनट हुए हैं। जी, नो क्रॉस टॉक। राणा शहबाज साहब, बग्गा साहब तशरीफ रखेंगे। अब तसल्ली से सुने ना, अब तसल्ली से बात सुने ना, देखे मेरी बात सुने ना मेरी। नो क्रॉस टॉक। एक सेकंड डॉक्टर साहब, इस यार राणा शहबाज साहब, यार बैठना, आप बैठे ना। देखे आपकी बात बग्गा साहब बैठे ना, बैठे यार, बैठे। ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब मेरी बात सुनिए। जी स्पीकर साहब, नहीं, नो क्रॉस टॉक जी, इस तरह ना करें। नहीं, इस तरह नहीं यार, इस तरह नहीं। शेख साहब, देखें मेरी बात सुने। स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब मेरी बात सुने, मुझे इनको चुप करवाने देना। साउथ पंजाब की तरक्की की बात हो, इनकी चीजें क्यों निकलती हैं? बहावल नगर में आसान कारोबार में 60,000 लोगों ने कर्जा लिया। रहीम यार खान में 6,500 लोगों ने, बहावलपुर के अंदर 6,500 लोगों ने, बिहाड़ी के अंदर 7,500 लोगों ने, खानेवाल के अंदर 5,500 लोगों ने, कसूर के अंदर 6,500 लोगों ने, मुजफ्फरगढ़ के अंदर 4,500 लोगों ने, लिया के अंदर 4,500 लोगों ने आसान कारोबार, जो कि टोटल 55% ऑफ द आसान कारोबार स्कीम है, वो साउथ पंजाब के लोगों ने। स्पीकर साहब, हिम्मत कार्ड, वजीर आला पंजाब का हिम्मत कार्ड। स्पीकर साहब, मुजफ्फरगढ़ में 7,500 लोगों ने, बहावल नगर में 6,500 लोगों ने, बहावलपुर में 5,500 लोगों ने, झंग के अंदर 5,500 लोगों ने, डेरा गाजी खान के अंदर 5,500 लोगों ने, खानेवाल के अंदर 5,000 लोगों ने, भक्कर के अंदर स्पीकर साहब
5,500 लोगों ने हिम्मत कार्ड लिया, जो कि 33% ऑफ द सीट है साउथ पंजाब के लिए। क्या बोलती है? क्या बोलती है? सच बोलती है, 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 सच बोलती है, क्या बोलती है? क्या बोलती है? सच बोलती है, क्या बोलती है? सच बोलती है, क्या बोलती है? सच बोलती है, क्या बोलती है? क्या बोलती है? क्या बोलती है? सच बोलती है, क्या बोलती है? सच बोलती है, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, क्या बोलती है? स्पीकर साहब, रहमत कार्ड, साउथ पंजाब का रहमत कार्ड में से क्या बोलती है? सच बोलती क्या बोलती है? सच बोलती है, अरे क्या बोलती है? सच बोलती है, मोदी क्या बोलती है? सच बोलती है, क्या बोलती है? सच बोलती क्या बोलती है? सच बोलती है, बोलिए सुनो, क्या बोलती है? सच बोलती है, रहमत कार्ड, सच बोलती है, स्पीकर साहब, रहमत कार्ड, क्या बोलती है? सच बोलती है, क्या बोलती है? सच बोलती क्या बोलती है? स्पीकर साहब, रहमत कार्ड, स्पीकर साहब, रहमत कार्ड में से जो कि बेवाओं और यतीमों का कार्ड है। रहमत कार्ड वजीर आला पंजाब का बेवाओं और यतीमों का कार्ड है। इसमें मुल्तान में 35,000 लोगों को ये कार्ड मिला है। मुजफ्फरगढ़ में 32,000 लोगों को ये कार्ड मिला है। रहीम लाल खान में 31,000 लोगों को कार्ड मिला है। भागलपुर में 32,000 लोगों को कार्ड मिला है। खानेवाल में 24,000 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली, सरगोदा में 25,000 लोगों को हिम्मत कार्ड मिला, रहमत कार्ड। बहावल नगर में 22,000 लोगों को मिला। बिहाड़ी में 23,000 लोगों को मिला, जो कि पूरी स्कीम का 44.6% है वजीर आला पंजाब का। क्या बोलती है? क्या बोलती है? क्या बोलती है? क्या बोलती है? और क्या बोलती है? क्या नहीं बोलो, क्या बोलती है? क्या नहीं बोलो, क्या बोलती है? क्या बोलती है? सच बोलती है, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, जिंदाबाद, अरे गाने बोलो, क्या बोलती है? सच बोलती है, बोलो, क्या बोलती है? सच बोलती है, अभी बोलो, क्या बोलती है? सच बोलती है, फिर बोलो, क्या बोलती है? सच बोलती है, फिर बोलो, क्या बोलती है? फिर बोलो, क्या बोलती है? सच बोलती है, स्पीकर साहब, साउथ पंजाब के नारे लगाते हैं ये। स्पीकर साहब, नारे लगाते हैं साउथ पंजाब के। खाली जो फ्लड आया, वजीर आला पंजाब ने पूरे पंजाब के अंदर अपनी निगरानी खुद की। वजीर आला पंजाब फील्ड में खुद उतरी, इनकी तरह कमरा में सोई नहीं थी। और जो फ्लड का रिलीफ का काम, रेस्क्यू का काम, रिहेबिलिटेशन का काम, कॉम्पनसेशन का काम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खुद दिया। और साउथ पंजाब के अंदर